गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके कंप्यूटर टीचर फरहत नाज बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप घर में होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का, फाइल्स इनपुट एंड आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमने एक वीडियो फाइल हैंडलिंग इन C++ का डाला है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल्स इनपुट एंड आउटपुट्स। लिसन स्टूडेंट, फाइल इज a collection of logically related records and stream is a data flow from source to destination. These unformatted streams are, स्टूडेंट, एक तरफ लिखा है स्ट्रीम और दूसरी तरफ है मीनिंग। सीन का मीनिंग है स्टूडेंट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। उसके बाद है सी आउट का है मीनिंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। लिसन स्टूडेंट, ए स्ट्रीम इज a sequence of bytes. It can either as a source from which the program take input data or as a destination to which the program can send output data. The source stream that supplies data to the program is called input stream, and the destination stream receive data from the program is called output. Listen students, file is a collection of logically related records and stream is a data flow from source to destination. Scene meaning standard input stream. Cout meaning standard output stream. A stream is a sequence of bytes. It can either as a source from which the program take input data or as a destination to which the program can send output data. The source stream that supplies data to the program is called input stream, and the destination stream receives data from the program is called output streams. समझिए स्टूडेंट्स, फाइल इनपुट एंड आउटपुट। फाइल एक कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का और स्ट्रीम डेटा फ्लो करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। स्ट्रीम एक सीक्वेंस है बाइट्स का। ये एक सोर्स हो सकता है जहां प्रोग्राम इनपुट डेटा ले सकता है। ये एक डेस्टिनेशन हो सकता है जहां प्रोग्राम आउटपुट डेटा सेंड कर सकता है। सोर्स स्ट्रीम जो डेटा सप्लाई करता है प्रोग्राम को, उसको इनपुट स्ट्रीम कहते हैं, और डेस्टिनेशन स्ट्रीम डेटा रिसीव करता है प्रोग्राम से, उसको कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम कंटेन करता है क्लास डेफिनेशन क्लास के लिए जो कि यूज होता है फाइल इनपुट आउटपुट में। समझिए स्टूडेंट, फाइल एक कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का और स्ट्रीम फ्लो डेटा करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। स्ट्रीम एक सीक्वेंस है बाइट्स का। ये एक सोर्स हो सकता है जहां प्रोग्राम्स इनपुट डेटा ले सकता है। ये एक डेस्टिनेशन हो सकता है जहां प्रोग्राम आउटपुट डेटा सेंड कर सकता है। सोर्स स्ट्रीम जो डेटा सप्लाई करता है प्रोग्राम को, उसको इनपुट स्ट्रीम कहते हैं, और डेस्टिनेशन स्ट्रीम डेटा रिसीव करता है प्रोग्राम से, उसको कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम कंटेन करता है क्लास डेफिनेशन क्लासेस के लिए जो कि यूज होता है फाइल इनपुट आउटपुट में। आगे स्टूडेंट, F stream contains class definition for classes used
in file input output. The header ifstream.h includes the definition for the stream classes, ifstream for input from a file, ofstream for output of a file, and ifstream for input to and output from a file. Files are opened by creating objects of these stream classes. These stream classes are derived from classes iStream, OStream, and IOStream respectively. The inheritance relationship of the input-output classes. When we have to operate bulk of data, then files are required. The important stream classes required for file operations are: number 1, ifstream can be used for file read operations. Number 2, ofstream can be used for file write operations. Number 3, ifstream can be used for both read and write operations. Listen student, ifstream contains class definition for classes used in file input output. The header ifstream includes the definition for the stream classes ifstream for input from a file, ofstream for output from a file to a file. Any ifstream for input to and output from a file. Files are opened by creating objects of these stream classes. These stream classes are derived from classes iStream, OStream, and IOStream respectively. The inheritance relationship of the input-output classes. When we have to operate bulk of data, then files are required. The important stream classes required for file operations are: number 1, ifstream can be used for file read operations. Number 2, ofstream can be used for file write operations. Number 3, ifstream can be used for both read and write operations. समझते हैं स्टूडेंट्स? if stream includes करता है definitions stream classes के लिए. ifstream for input for a file. ओपन फाइल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद. ये सारे स्ट्रीम क्लासेस के लिए. ये सारे स्ट्रीम क्लासेस आते हैं क्लासेस से. iStream, OStream और IOStream क्लासेस इनपुट आउटपुट का इनहेरिटेंस रिलेशनशिप. जब हम लोग को बहुत सारे डेटा ऑपरेट करना पड़े तब फाइल्स की ज़रूरत होती है. वे सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम क्लास जो कि रिक्वायर होते हैं फाइल ऑपरेशंस के लिए. ifstream ये यूज़ होता है फाइल को रीड करने के लिए. ofstream ये यूज़ होता है फाइल राइट ऑपरेशंस के लिए. ifstream ये यूज़ होता है दोनों रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए. समझिए स्टूडेंट, फाइल एक कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स का और स्ट्रीम डेटा फ्लो करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक. स्ट्रीम एक सीक्वेंस है बाइट्स का. ये एक सोर्स हो सकता है जहां प्रोग्राम्स इनपुट डेटा ले सकता है.
ये एक डेस्टिनेशन हो सकता है जहां प्रोग्राम आउटपुट डेटा सोर्स स्ट्रीम जो डेटा सप्लाई करता है प्रोग्राम को उसको इनपुट स्ट्रीम कहते हैं और डेस्टिनेशन स्ट्रीम डेटा रिसीव करता है प्रोग्राम से उसको कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम कंटेंट। क्लासेस डेफिनेशन के लिए जो कि यूज़ होता है इनपुट आउटपुट फाइल में हेडर फाइल इंक्लूड इफ स्ट्रीम करता है डेस्टिनेशन स्ट्रीम क्लासेस के लिए IF स्ट्रीम। ओपन फाइल्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के बाद ये सारे स्ट्रीम क्लासेस के लिए ये सारे स्ट्रीम क्लासेस आते हैं क्लासेस से आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम और IO स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट क्लासेस का इनहेरिटेंस रिलेशनशिप जब हम लोग को बहुत सारे डेटा ऑपरेट करना पड़ता है तब फाइल्स की ज़रूरत होती है। वे सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम क्लास जो कि रिक्वायर होते हैं फाइल ऑपरेशंस के लिए। IF स्ट्रीम ये यूज़ होता है फाइल को रीड करने के लिए। OF स्ट्रीम ये यूज़ होता है फाइल राइट ऑपरेशंस के लिए। F स्ट्रीम ये यूज़ होता है दोनों रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको